The thing I want to ask is, do you really think that we are free? We have enough freedom, but are we using it the right way? Actually, freedom is a big word. In which way are you asking that we are free? Generally, like, Yeah. I'm not talking about our Bill of Rights or anything like that, but like, अभी मैं example देता हूँ कि अगर मैं किसी को गोली मार के चला जाऊँ, and I think हमारे पास कुछ ज़्यादा ही freedom है, तो do you think it's the right way, like, ऐसा होना चाहिए हमारे साथ? This can only happen in Colombia, not in Pakistan at least. So that kind of freedom, I don't think so. That's humanly possible anywhere in the world. But yeah, freedom. It's quite Pakistan. If you talk about Pakistan, it's quite free compared to other countries. Even though we're living in the third world country, but I say we are free. If you go abroad, right? You break a signal, nothing happens, and the next day you get a meal full of taxes and the dues and all those stuff. So here nothing happens like this. You get away with everything you do. But no, I'm not talking about killing somebody and get away, but yeah, we are free. In Pakistan, it's freedom. I'm not saying कि हमें आज़ादी नहीं है. मुझे तो हर किस्म की आज़ादी है, पर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है. Like हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. Like God didn't tell us to have, like, He didn't give us this much freedom to use it the wrong way. Everything extreme. If you take religion as extreme, it's bad, right? If you take anything positive as extreme, in an extreme way, it's bad. Taking freedom in an extended in a very extreme way, it's also bad. So it goes vice versa. If you take it cool and calm with what you know it's right, till what level it's right, then it's good. That's good enough. So, like, do you think that's the right way of doing it? Like, do you think that's हमें कुछ ज़्यादा ही freedom मिल गई है? No, it's not about freedom. If you talk about politics over here, it's all the game of power. If anyone gets a power, even a Maulana gets a power, then he's gonna use, maybe he's gonna use it in the wrong way, because Satan is everywhere. It's there with you, it's there with me, right? There is a thing called nafs in every human being. Say it. That nafs plays with you. That is a shaitan. That's where shaitan comes in, right? Like if you would have a bit tilt towards religion, then obviously we see with this Maulana. One day I went to a Maulana. He said to me that like changed my life. He said, "The गुनाह सबसे होता है. हज़रत आदम से हुआ, उसके बाद जितने प्रॉफिट्स हुए, हल्का फुल्का गुनाह हुआ. एक प्रॉफिट है जिनने मछली ने खा लिया, 100 साल वो अंदर है, उनसे गलती हुई, ठीक है, वो भी शैतान ने ही बहकाया. हज़रत मूसा ने, कुरान के अंदर हज़रत मूसा ने घूसा मारा अपने दूसरे काफले के आदमी को और वो मर गया, ठीक है. उसके बाद हज़रत मूसा ने बोला कि ये तो बेशक शैतान का काम था, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. सही है. तो शैतान इज़ एवरीवेयर. अब टेलीविजन तो और कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इट्स एवरीवेयर. सही है. People say you want to use it for a positive way, you can, right? But how many people use it for a positive way? Like 99.9 people I know, they use it for chatting. They talk to their girlfriend, cell phones, girlfriend, no work, ये वो फलाना धमकाना. टेलीविजन में तो अल्लाह माफ़ करे, आज पहले तो इंडिया आ गया था, अब तो पाकिस्तान भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहा उससे. अब आज तो you just change the channel. सही है. तो समथिंग इज़ बैड गोइंग अराउंड ओवर देयर. तो वो नफ्स को जो कंट्रोल करना है ना, वो नफ मर गई है हमारी. हमने मसला ये कि किताब जो है ना, किताब द कुरान, वी लेफ्ट द कुरान. सही है. एक गाड़ी खरीदते हैं, उसके पास गाइडेंस आती है. आप एक MP3 खरीदते हैं, आईपॉड खरीदते हैं, उसके साथ एक गाइडेंस आती है. तो मतलब आप गाइडेंस पढ़े और फिर आप देखिए करना क्या है इसके साथ भाई. सही है. अब ह्यूमन लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है? दैट्स अ कुरान. ठीक है. आपने कुरान छोड़ दिया, आपके लिए कोई इशू है, आप पहुंच गए मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ये इशू है. अब मौलाना साहब ने अपने किसी भी तरीके सही गलत वो बंदा मानता हुआ आ जाता है, मगर किसी को ये नहीं पूछता भाई व्हाट्स इन द कुरान, व्हाट्स कुरान हैज टू ऑफर.
नाम क्या है? मेरा नाम सलमा है, सलमा एडवोकेट हूँ, मैं हाई कोर्ट की वकील हूँ मैं। आप हाई कोर्ट की वकील हैं, आप कितने साल से वकील हैं? मैं 8 साल से। 8 साल से। आज जो भी हो रहा है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं मुझे बताएं? हम किसी के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अदलिया की बहाली चाहते हैं। अच्छा, तो यानी आपको लगता है कि आपको बहाली मिल जाएगी इतनी इंशाल्लाह ज़रूर बहाली मिलेगी, क्योंकि हम खुदा पर अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप यानी आपने वकालत के लिए कितने साल से पढ़ा है, कितना साल पढ़ा है आप? ये हमारा ये जो मौजूदा कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है, ये डिग्री मास्टर डिग्री है। नहीं, मैं यानी आपकी लाइफ पूछा, यानी आपने पूरे लाइफ वकील एक बनने के लिए कितना पढ़ा है? मैंने MA किया है, B.Ed किया है, LLB किया है। मुझे यानी नंबर साल में बता सकते हैं, यानी इतना साल, 13 साल, 14 साल? नहीं, काफ़ी साल लग गए हैं। कितने साल? यानी अंदाज़न 20 साल? हाँ, अंदाज़न 20-22। अच्छा, आप यानी आपने 20 साल पढ़ा है, लिखा है, आप इतनी एजुकेटेड हैं, तो आपको नहीं लगता कि रादर देन डंडियाँ खाने के, लाठियाँ खाने के, ऐसा प्रोटेस्ट करने के, डोंट यू थिंक देयर इज़ अ एजुकेटेड वे ऑफ डूइंग इट? नहीं, लेकिन बात सुने, हम लोग तो सही तरीके से मज़ाकरात की ही शक्ल में ये अमन अमान सब कुछ चाह रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट मंजूर कर हम लोगों को मजबूर करेगी तो फिर हम लोगों को ये करना पड़ेगा। कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ रहते हैं आप? देखिए, मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ और मैं यहाँ रैली में शिरकत के लिए आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा है इस वक्त, और हम सबको चाहिए कि हम लोग रोडों पर आएँ और अपने मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। सर, आपको लगता है कि अगर चीफ जस्टिस बाहर हो गए तो इससे हमें इंसाफ मिल जाएगा, जाके ना कि हमारे प्रेसिडेंट कोई भी हो? देखिए, बात चीफ जस्टिस की नहीं है इस वक्त, बात ये है कि चीफ जस्टिस ने जो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसमें उसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस दोराहे पे खड़ा है, उनके इक़दामात की उनकी मुखालफत की है, और इसी वजह से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ किया गया है, और इसीलिए NRO का नफाज किया गया है, ताकि मुल्क के अंदर चोरों का जो है इक़्तिदार आए। आपको पता है आप महमूद खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लीडर है, हमारा तंजीम है, मुस्लिम जमहूरियत चाहते हैं। आपने अपना उसे लीडर क्यों बनाया हुआ है? अपने हकूक़ के लिए, इस मुल्क में इंसाफ के लिए। आपको पता है इस मुल्क के हिसाब के यानी ज़रूरी है कि एक ग्रुप बनाना ज़रूरी होता है इंसाफ चाहने के लिए? हम लोगों के तजर्बे से साबित हुआ कि कौम के लिए एक तंजीम, एक कौमी पार्टी ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में हमारी कौम पश्तून कौम के इस्तेसाल हो रहा है, इसी वजह से हम नहीं यार, देखिए, पार्टी आप पार्टी बना के निकल जाते हैं, सही, अभी आप थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पुलिस से लाठियाँ खाएंगे, ये होएगा, इतना तशद्दुद होने के बाद भी फिर भी आप एक बंदे को सपोर्ट करें जो खुद यहाँ नहीं होता। हम पूरे मुल्क में जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो आपका लीडर है वो खुद का है, ये मैं पूछूं? वो भी इस मौजूद है, ये PDM का चेयरमैन है। यानी इधर अभी ये जो रैली निकली है इसमें नहीं है, उमर का कोयटा में, कोयटा में ना मौजूद है यहाँ पे। हाँ, तो आपका लीडर आपके आगे नहीं है? सदर से हम पैदल आ रहे हैं हमारे साथ। सियासत वो तो आ रहे हैं, मैं आपकी लीडर की बात कर रहा हूँ। लीडर की बात है। अच्छा, हमारे सूबाई कायदी जो सिंध की सूबाई कायदी है, हमारे साथ है, और इस दरमे के वकीलों के साथ है। तो सर, ये जो कोई लीडर नहीं है, सबका एक ही मौका है, दुनिया को बहाल करो बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर एक ही मौका है ना, तो ये जो झंडा है ना, ये झंडा ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। मगर मौके पे एक लीडर को माफ कर, पता नहीं चलता है पहचान है, कोई वो नहीं। आपकी पहचान पाकिस्तान की पहचान होनी चाहिए। पाकिस्तान की भी है, पाकिस्तान के अंदर भी हम एक झंडे के तले सब एक हैं। हाँ, तो ये वो एक झंडा नहीं है ना, मसला ये। आपने वकालत यानी कितने साल पढ़ी है? मुझे 24 साल हो गए वकालत करते हुए। 24 साल आपने सिर्फ वकालत की है, पढ़ी भी है, ऊपर से आपने अपने बचपन में भी पढ़ा था। जी जी, यानी आप वाकई में कुछ बहुत एजुकेटेड बंदे हैं। जी। तो आपको लगता है कि यार ये रैलियाँ निकालना ये तरीका है एक? जी बिल्कुल, जमहूरी तरीका है ये, जमहूरियत में ये चीज़ है बिल्कुल, पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज किया जाए तो बिल्कुल सही है। और कोई तरीका नहीं है सिवाय? नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हुकूमत ने हमें मजबूर किया, हम हुकूमत के साथ थे। हुकूमत में जो आज लोग बैठे हैं वो भी हमारी जिद्दोजहद में कल इसी तरह रोडों पे हमारे साथ होते थे। इतनी लाठियाँ खाने के बाद भी, इतना भी जुल्म होने के बाद भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिले तो? नहीं, हमारा काम है जिद्दोजहद करना,
देखें जिस तरह मौज़न का काम है अजान देना, नमाज़ पढ़ने कोई आए ना आए, अल्लाह के दिन अल्लाह के पास वो जब जाएगा कहेगा जी मैंने अजान दी थी, अगर नमाज़ पढ़ने कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये लोगों का काम है, हमारा काम है लोगों के लिए जिद्दोजहद करना। आम आदमी को इंसाफ जब ही मिलेगा, कुरान पाक में भी अदल पर जोर दिया गया है, अदल होगा तो इंसाफ मिलेगा। हर जगह हम चाहते हैं मेरिट हो। जब मुल्क में अदली आज़ाद होगी तो हम समझते हैं कि हर आदमी को, आम आदमी को इंसाफ उसके घर बैठे मिलेगा। थैंक यू सर, गुड लक सर, थैंक यू सर। आपका